ایک حکمران کا ظہور سلطان صلاح الدین ایوبی کا ابتدائی زندگی۔ مغربی دنیا میں صلاح الدین کے نام سے مشہور صلاح الدین یوسف بن ایوب ایک عظیم تاریخی شخصیت تھے۔ 1137 میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ صلاح الدین کی کردین سل نے ان کے نقطہ نظر کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب ایک معزز فوجی رہنما تھے۔ وہ اپنے خاندان کو حلب لے گئے جو اسلامی روایات اور علم کا مرکز تھا۔ حلب میں پرورش پانے کی وجہ سے صلاح الدین کو علم اور فوجی حکمت عملی کی دنیا سے روشناس کرایا گیا۔ انہوں نے ایک جامع تعلیم حاصل کی، قرآن پاک، اسلامی فقہ اور عربیات کے مطالعہ میں خود کو غرق کر دیا۔ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ صلاح الدین نے اپنے چچا اسدال الدین شیر کو، جو شام کے طاقتور زنگی حکمران نور الدین زنگی کی خدمت میں ایک ممتاز ہو جیکمانڈو تھے، کیسر پرستی میں اپنے جنگی مہارت کو نکھارا۔ صلاح الدین کی ابتدائی زندگی علمیت، جسہ اور فوجی مہارت دونوں سے عبارت تھی۔ ابتدائی تجربات نے ان کی مسلکی قیادت کی بنیاد رکھی۔ وہ اسلامیات احادہ اور صلیبی جارحیت کے خلاف مزاحمت کی علامت بن جائیں گے۔ اقتدار کا عروج، مسلم دنیا کو متحد کرنا۔ صلاح الدین کا اقتدار کا سفر مصر سے شروع ہوا۔ 1164 میں وہ اپنے چچا شیر کوہ کے ساتھ ایک فوجی مہم میں شامل ہوئے تاکہ فاطمی خلافت کو صلیبی حملوں کے خلاف مدد فراہم کی جا سکے۔ اس وقت مصر بہت زیادہ تجارتیہ اور اقتصادی اہمیت کا حامل تھا۔ مصر پر کنٹرول کا مطلب تجارتی راستوں اور زرعی دولت کی کنجی حاصل کرنا تھا۔ صلاح الدین نے مصر میں اپنی فوجی حکمت عملی اور سیاسی چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جلد ہی اپنی قابلیت ثابت کر دی۔ 1167 میں اپنے چچا کی وفات کے بعد صلاح الدین مصر کے وزیر کے معتبر عہدے پر فائز ہوئے۔ یہ تقریر کی زندگی اور اسلامی دنیا کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ وزیر کی حیثیت سے صلاح الدین نے مؤثر طریقے سے مصر میں اقتدار کی باگڈور سنبھالی۔ انہوں نے اپنے نئے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسے خطے میں استحکام بحال کیا جو اندرونی تنازعات اور بیرونی خطرات سے دوچار تھا۔ صلاح الدین کا سب سے فیصلہ کن اقدام 1171 میں آیا جب انہوں نے فاطمی خلافت کو ختم کر دیا۔ انہوں نے مصر میں سنی اسلام کو دوبارہ غالب مذہب کے طور پر قائم کیا۔ اس اقدام کو اگرچہ کچھ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بالآخر مسلم دنیا کو ایک ہی جھنڈے تلے متحد کر دیا۔ مصر کو محفوظ بنانے کے بعد صلاح الدین نے ایک عظیم تروژن پر اپنی نگاہیں مرکوز کی۔ شمالی افریقہ سے لے کر شام تک مسلم زمینوں کو اپنے اقتدار میں متحد کرنا اور ان صلیبی ریاستوں کا مقابلہ کرنا جو لیونت میں جڑ پکڑ چکی تھیں۔ شیر دلاور سلطان مقدس سرزمین میں ٹائٹنز کا تصادم۔ صلاح الدین کا نام صلیبی جنگوں، خاص طور پر انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ جو رچرڈ شیر دل کے نام سے جانے جاتے ہیں، کے ساتھ آنے کے تصادم کا مترادف بن گیا۔ تیسری صلیبی جنگ جو 1199 سے 1192 تک جاری رہی، اندو عظیم شخصیات کے درمیان ایک ہم تصادم کی نشاندہی کرتی ہے۔ 1187 میں یروشلم کا صلاح الدین کی افواج کے ہاتھوں زوالی سائی دنیا میں ایک زلزلے کی طرح آیا جس نے ایک نئی صلیبی جنگ کا مطالبہ کیا۔ رچرڈ ایکسبرڈ سجنگ جواور ماہر حکمت عملی مقدس سرزمین میں اسزم کے ساتھ پہنچے کہ وہ حگم شدہ شہر کو دوبارہ حاصل کریں گے۔ رچرڈ کی صلیبی فوجوں اور صلاح الدین کی افواج کے درمیان ہونے والی لڑائیاں جوان مردیہ اور وحشیانہ دونوں کی خصوصیات کی حاملت ہیں۔ 1191 میں ارسف کی لڑائی صلاح الدین کی فوجیز ہانت کی مثال ہے۔ انہوں نے اپنی ہلکی زیادہ متحرکہ افواج کو رچرڈ کے بھاری صلیبی شور ویروں کو ہراساں کرنے اور کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا۔ میدان جنگ میں اپنی شدید دشمنی کے باوجود صلاح الدین اور رچرڈ نے باہمی احترام کا مظاہرہ کیا۔ اس وقت کے مورخین کے بیانات دونوں رہنماؤں کے جوان مردیہ اور ہمدردی کے کاموں کی بات کرتے ہیں۔ 1192 میں جافا کا معاہدہ، جس نے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ کیا، اس پیچیدہ تعلق کی عکاسی کرتا ہے۔ جبکہ یروشلم مسلم کنٹرول میں رہا، عیسائی زائرین کو مقدس شہر تک محفوظ رسد دیا گیا۔ انصافہ و رحمدلی کی میراث صلاح الدین کا کردار۔
सलाह अल-दीन की फौजी कामयाबियां नाकाबिल तरदीद हैं, लेकिन यान का किरदार इंसाफ और रहमदिली के लिए इनका गैर मुतज़लज़ल अज़्म था, जिसने उन्हें अपने इत्तेहादियों और अपने दुश्मनों दोनों की तारीफ हासिल की। वह अपनी तक़वा, आजिज़िया और सखावत के लिए जाने जाते थे। इनके रहमदिली की कहानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जो एक ऐसे हुक्मरान की तस्वीर पेश करती हैं जो जंग की वहशियाना सूरत हाल के बावजूद इंसानी जान की कदर करते थे। एक किस्सा बताता है कि सलाह अल-दीन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वह एक ख़ास तौर पर सख्त मुहासरे के दौरान पकड़े गए सलीबी कैदियों में पानिया व रसद तकसीम करें। एक और वाक़या हान के इस फैसले को बयान करता है कि शिकस्त खुर्द है बाशिंदगान यरूशलेम को व अपने सामान के साथ शहर छोड़ने इजाज़त दी जाए। रहमदली के ये काम सूकत के दूसरे हुक्मरानों के अक्सर ज़ालिमान हसलूक के बिल्कुल बरअक्स थे। सलाह अल-दीन का इंसाफ का अज़्म मैदान जंग से आगे बढ़ गया। उन्होंने इंसाफ और मसावात के असूलों पर मबनी इस्लामी कानून और हुकूमत का एक निज़ाम कायम किया। उन्होंने मुतअद्दिद हस्पतालों और स्कूलों की बुनियाद रखी, अपने लोगों के लिए तालीम और सेहत की देखभाल किया, हमीद को तस्लीम करते हुए। पांचवां हिस्सा, माहिर हुकमत अमली सलाह अल-दीन की फौजी महारत। सलाह अल-दीन की फौजी कामयाबी सिर्फ की हमतावर क़ियादत की वजह से नहीं थी, बल्कि फौजी हिकमत अमली और तदाबीर क्यान की गहरी समझ की वजह से भी थी। वह जारहाना और दफाई जंग दोनों के माहिर थे, अपनी हुकमत अमलियों को मैदान और अपने मुखालिफिन की ताकतवर कमज़ोरियों के मुताबिक ढालते थे। 1187 में हटीन की लड़ाई सलाह अल-दीन की हुकमत अमली के शानदार मिसाल है। उन्होंने गाय डेलोजिनियान की क़ियादत में सलीबी फौज को हतीन के सिंग के करीब बंजर इलाके में लालच दिया। सलाह अल-दीन की अफवाज ने सलीबियों को घेर लिया, उनके पानीत कर साय को काट दिया। होने वाली लड़ाई सलाह अल-दीन के लिए एक फैसला कन फतह थी, जिसने सलीबी फौज को मफलूज कर दिया और यरूशलेम पर 2 बार कब्ज़ा करने कैरा हमवार की। सलाह अल-दीन जंग में रसदा व रसद की लाइनों क्या अहमियत को समझ हते थे। उन्होंने यह यकीनी बनाया कि हन की फौजें लंबी हमात के दौरान भया क्षेत्र से लिसा व रसद से लैस हों। उन्होंने इंटेलिजेंस जमा करने की अहमियत को भी तस्लीम किया। उनके जासूसों के नेटवर्क ने उन्हें अपने दुश्मनों की इनक्लू हरकता व इरादों के बारे में कीमती मालूमात फराहम के। छठा हिस्सा, मैदान जंग से आगे सलाह अल-दीन की सिफारतकारियाँ और रियासती तदबीर। सलाह अल-दीन महज एक जंगजू नहीं थे, वह एक माहिर सिफारतकार और मुंतज़िम भी थे। वो समझते थे कि दीर पामना और इस्तेहकाम सिर्फ फौजी ताकत से हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने इत्तेहाद बनाने, मुआहिदों पर बातचीत करने और ख़त्े में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए सिफारतकारी का इस्तेमाल किया। सलाह अल-दीन की सिफारती महारत ख़ास तौर पर बाज़नतीनी सल्तनत के साथ आन के ताल्लुकात में वाज़ेह थी। उन्होंने बाज़नतीनियों के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखने की ज़वेराती अहमियत को तस्लीम किया, यहाँ तक कि जब वह अपने सलीबी इत्तेहादियों के खिलाफ लड़ रहे थे। उनकी सिफारती कोशिशों ने 2 महाज़ों पर जंग को रोकने और उनकी मशरक़ सरहदों को महफूज बनाने में मदद की। सलाह अल-दीन का दौर इक़्तिसादी खुशहाली और सकाफ़ती अरूज का दौर था। उन्होंने तिजारत और ज़राअत फ़रोग़ देने के लिए बुनियादी ढांचे के मंसूबों जैसे आबपाशी के नहरा और कारवां सराय में सरमायाकारी की। उन्होंने उलमा, फ़नकारों और शायरों की सरपरस्ती की, जिससे इनका दरबार इल्मा और तख्लीकी सलाहियतों का मरकज़ बन गया। 7वां हिस्सा, यूबी ख़ानदान, इस्लामी हुकूमत का सुनहरी दौर। सलाह अल-दीन की मेरासान की अपनी ज़िंदगी से आगे बढ़ गई। उन्होंने यूबी ख़ानदान की बुनियाद रखी, जिसने मसरा और लीवंत के कुछ हिस्सों पर 1 सदी से ज़्यादा अरसे तक हुकूमत की। यूबी दौर इस्लामी तहज़ीब का एक सुनहरी दौर था, जिसमें इल्मी कामयाबियाँ, फ़न तामीर के अजायबात और इक़्तिसादी खुशहाली शामिल थी। यूबियों ने सलाह अल-दीन के रवायत को जारी रखा कि वह इल्मा और फ़नून लतीफ़ा की सरपरस्ती करते थे। उनके दौर में कुतुब खाने और मदारस फले फूले, जो इस्लामी दुनिया भर से उलमा को अपने तरफ मुतवज्जह करते थे। यूबियों ने इस्लामी फ़न तामीर में भी नुमायाँ किरदार अदा किया। उन्होंने मसाजिद, हस्पतालों और कलों की तामीर की, जो आज अभियान के फ़नकाराना, होजना और इंजीनियरिंग की महारत के सबूत के तौर पर खड़े हैं।
यूबी दवर में तिजारत और कारोबार में भीतर कई दिखने में आई। अयूबी मशरका और मगरब को मिलाने वाले अहम तजारती रास्तों पर काबिज थे। उनके मुस्तहकम इक़्तिदार और मुनसिफाना हुकूमत ने पूरे यूरेशिया के ताजरों के लिए साजगार माहौल पैदा किया। आठवां हिस्सा, वक्त के आईने से सलाहल-दीन की दायमी मीरास। अपनी वफात के सदियों बाद सलाहल-दीन तारीख में एक अजीम शख्सियत हैं। मुसलमानान का एहतराम इस्लाम के एक बहादुर मुहाफ़िज़ा और इत्तेहाद और मुज़ाहिमत की अलामत के तौर पर करते हैं। यहाँ तक कि मगरिब में भी, जहाँ इन्हें एक ज़बरदस्त दुश्मन के तौर पर डराया जाता, सलाहल-दीन को एक बहादुर और मुअज़्ज़ज़ रहनुमा के तौर पर याद किया जाता है। सलाहल-दीन की विरासत वक़्ता और थकाफ़त की हदूद से बालातर है। इनकी तारीफ़ न सिर्फ़ की फ़ौजी कामयाबियों के लिए बल्कि खान के किरदार के लिए भी की जाती है। इनके हमदली, इंसाफ और अपने असूलों के लिए इनका आज़म आज भी लोगों को मुतासिर करता है। मजहबी इद्म बर्दाश्त और तशद्दुद के दौर में सलाहल-दीन की मीरास बकाए बाहमिया और बाहमिया एहतराम के अमकान की याद दहानी करती है। इनकी अनीम काल में समझ बोझ और अमन के हसूल की अहमियत को उजागर करती है। नवा हिस्सा, नतीजा, सलाहल-दीन जवान मर्दी का रोशन मीनार। सलाहल-दीन की जिंदगी और मीरास इंसानी फितरत की पेचीदगियों का एक दिल की सबूत पेश करती है। वह एक जंगजू थे जो जंग की कीमत को समझते थे, एक हुक्मरान थे जिन्होंने इंसाफ के साथ हमदर्दी का मुजाहिरा किया, और एक रहनुमा थे जिन्होंने अपने लोगों से वफादारी और तारीफ दोनों को मुतासिर किया। इनकी कहानी फ़ता और सकाफ़ती हदूद से बालातर है, रहनुमाओं और आम लोगों के लिए कीमती असबाक पेश करती है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर तनाज़ा और अदम एतमाद से तकसीम होती है, सलाहल-दीन की मीरास आमीद के रोशन मीनार की तरह चमकती है। इंसाफ, रहमत लिया और समझ बूझ के लिए इनका गैर मुतज़लज़ल ज़मामिन के पल बनाने और मुतनोए बरादरियों के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए एक औलहाम का काम करता है।